Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. No, we will do the later. No problem. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? So basically, the seizure is because our brain is using micro electricity within the brain because we have neurons and जो हमारे यहाँ पे जो दिमाग के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं न्यूरॉन्स वो आपस में जो भी वर्क करते हैं दे डू विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी. So sometimes this electricity or some connections are there. So उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा हो वो भी unprovoked हो then patient can have seizure. So normally this is happen whenever the seizure occurs. And seizure is basically unprovoked response on unprovoked actions of your body, which is led by the brain. What is epilepsy? So there's two things. One is epilepsy and other is seizure. So seizure is a single term and epilepsy is a disease. So epilepsy basically in a medical term हम लोग तब बोलते हैं जब किसी पेशेंट को दो से ज़्यादा एपिसोड हो जाएं सीजर के और वो भी विदाउट एनी प्रोवोकेशन लाइक किसी को फीवर आ जाता है किसी को स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो विदाउट एनी दैट पार्ट एंड पेशेंट हैज़ मोर देन टू सीजर्स that was apart 24 hours, then we can call it epilepsy. Basically, is a terminology in medical. What are the different types of seizures and do they affect people differently? Yes, there are many type of seizures और many type of epilepsy, but basically हम लोग जो सीजर को है दो टाइप में डिवाइड करते हैं. वन इज जनरलाइज व्हेन आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है एंड अदर वन इज अ फोकल व्हेन a particular of your body part is involved like hand or lower limbs or face, then it is called focal. Only two types is likely basically we should know, and there are multiple other type of seizures also there. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? नो एक्चुअली हम लोग जब देखते हैं सीजर पेशेंट में तो मोर देन 50% पेशेंट अराउंड 50% पेशेंट हैज़ नोन कॉज एंड 50% हैज़ no any cause for the seizure or epilepsy. So in known causes there are like patient has brain any sort of problem in the brain can cause seizure. So like patient brain has any infection or any tumor or any type of sometimes there is some congenital abnormalities in brain that ये सारी चीज़ें ही सीजर कॉज कर सकती हैं. And in 50% cases we don't find any reason or any cause for the seizure. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम एपिलेप्सी और सीजर में होता है कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स इन द हैंड और पैर में या हाथ में या फेस पे विच इज़ रिपीटेटिव टाइप ऑफ मूवमेंट्स कंजोनेंस या वाइब्रेटिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं और साथ में पेशेंट को मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं पेशेंट्स को and there sometimes there is frothing from the mouth or saliva coming out, and these are the mainly symptoms. When there can be other type of symptom depends on the seizure type. There can be patient सिंपली देखता रहता है किसी चीज़ को लंबे टाइम तक या फिर पेशेंट को एक हाथ हिलने लगता है या एक पैर हिलने लगता है और समटाइम्स में पेशेंट के सारे हाथ पैर हिलने लगते हैं देन पेशेंट बेहोश हो जाता है एंड फेस टेढ़ा हो जाता है. दे आर मेनली द symptoms for the seizure. Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? हाँ,
That's a nice question. One is epilepsy is a stigma for long times, and still it is present in the villages or in remote areas. लोगों को लगता है कि भूत ने पकड़ लिया या कुछ और भी रीजंस होते हैं जैसे लोगों को लगता है, तो एपिलेप्सी इज स्टिल स्टिग्मा इन वेरी रिमोट एरियाज। बट आजकल लोगों को जागरूकता हो गई है, तो लोगों को पता है कि ये एपिलेप्सी दिमाग के किसी कारण की वजह से होता है। और एक और स्टिग्मा होने का रीज़न भी है कि पेशेंट में क्या होता है कि एपिलेप्सी के टाइम में पेशेंट को सीज़र आते हैं और आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट ये अपने आप बंद हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ है और ये किसी और कारण की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी सबको जागरूकता की वजह से लोगों को पता है बेसिकली कि सीज़र इज़ ड्यू टू इट इज़ एपिलेप्सी इज़ बिकॉज़ ऑफ सम कॉज़ इन द ब्रेन। और लोग अभी भी स्टिग्मा फ़ॉलो करते हैं कि हाँ, ये हमारे घर में आ जाएगा या हमारे फैमिलीज़ में हो जाएगा, तो स्टिल कुछ अभी भी बहुत रिमोट एरियाज़ में अभी भी स्टिल एपिलेप्सी इज़ स्टिग्मा। How does this stigma affect people with epilepsy? हाँ, पीपल विद एपिलेप्सी पेशेंट को लगता है कि हाँ, पीपल के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन एज़ अ कम्युनिटी अगर हम लोग सोचते हैं कि हाँ, इस चीज़ को एरेडिकेट कर सकते हैं या लोगों के अंदर तो बता सकते हैं, तो ही है चीज़ों को हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ अगर किसी को एपिलेप्सी होता है, तो उसको बोलना है कि जाके ट्रीटमेंट लेना है, जाँचें करवानी है, जिससे ये पता चले कि क्यों हो रहा है। एंड डेफ़िनेटली ट्रीटमेंट देनी है, जो डेफ़िनेट ट्रीटमेंट है, किसी को कितने टाइम तक मेडिसिन चलती हैं, ये फ़िक्स है। तो इसके साथ ही हम लोग उन पर एपिलेप्सी ट्रीट कर सकते हैं, एंड इट इज़ ए ट्रीटेबल कॉज़। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? कॉज इज ट्रिगर ट्रिगर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज पेशेंट को अगर ट्रिगर होता है तो देन एपिलेप्सी होती है या सीजर होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रिगर इज लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, बैड फूड हैबिट्स एंड लो फिजिकल एक्टिविटी। एंड सम टाइम कुछ टाइम में ऐसे ऐसे भी इफ़ेक्ट होते हैं लाइक किसी को फ्लैश लाइट से भी हो सकता है या किसी को किसी पर्टिकुलर स्मेल से हो सकता है। तो बेसिकली दीज आर द ट्रिगर पॉइंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट इज उनके लिए सभी के लिए होता है बेसिकली स्ट्रेस एज वेल एज abnormal food diet and low sleep. That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? Um, the most important part is the stress for the management of epilepsy. Management in the stress in the trigger point. Trigger point is basically suppose patient stress से हो रहा है उनको, तो हमेशा स्ट्रेस से वो रखना है। एंड दूसरा पार्ट ये होता है किसी को फीवर आने से होता है, तो उनको फीवर को अवॉइड करना है। या किसी को सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो स्लीप, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए आपको, 6 to 8 आवर्स और 10 आवर्स, ये इम्पोर्टेंट है। एंड डाइट हैबिट शुड बी गुड एंड फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर सो दैट ट्रिगर पॉइंट ना हो सके। जो इम्पोर्टेंट है कि ट्रिगर ही नहीं होगा तो वो एपिलेप्सी या सीजर प्रोवोक ही नहीं होगा। Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? हाँ, ड्यूरिंग सीज़र जब किसी को सीज़र आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को अनकॉन्शियस हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो यूजुअली सपोज़ कोई घर पे है तो शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, नीचे फ्लोर पे भी सॉफ्ट चीज़ें होनी चाहिए। या कभी ऐसा होता है या उनको फ़ील होता है कभी-कभी कि मेरे को सीज़र आने वाले हैं, तो उस टाइम में उनको सिटिंग पोज़ीशन में या लेट जाना चाहिए। एंड कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आस-पास नहीं होना चाहिए। घर पे भी सपोज़ किचन में काम करते हैं तो ओपन एयर नहीं होनी चाहिए, माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं या इंडक्शन का यूज़ करते हैं रेदर देन ओपन फायर इन गैस। तो दीज़ आर द बेसिकली। एंड इन केसेज़ ऑफ लाइक कोई बाहर घूम रहा है या बाइक पे चल रहा है, तो जिनको पता है कि मेरे को एपिलेप्सी है या सीज़र है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग को भी, कि ड्राइव नहीं करें या कम करें या स्ट्रेसफुल ना होके करें, सो दैट कि कोई प्रोवोक ना हो और कोई स्ट्रेस में सीज़र ना आ जाए, बिकॉज़ ड्राइविंग इज़ मोस्ट affected part in seizure. Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? Final thoughts. First thing is epilepsy or seizure is a not a stigma. Is it a treatable disease? Third one,
आपको कम्युनिटी को अवेयर करना है कि सीज़र कोई अनट्रीटेबल कॉज़ नहीं है, इसका ट्रीट किया जा सकता है, सो दैट कि लोग दवाइयाँ लें। एंड कभी भी जो लोगों को दवाइयाँ चलती विदाउट एनी डॉक्टर एडवाइस दवाइयाँ बंद नहीं करनी, बिकॉज़ जैसी दवाइयाँ बंद करते हैं उनमें दोबारा सीज़र हो सकता है। तो विदाउट एनी गाइडेंस के बंद नहीं करनी है एंड रेगुलरली लेनी है। So final is seizure is not a stigma and it is a treatable disease. Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.